جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 3 چیزوں کا اجرا تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں. کل ہو گیا تھا الحمدللہ ہمارا. جی پہلے فعل کی علامات میں سے قد، سین اور سوفا. میں نے عرض کیا تھا کہ قد اور سوفا اس کی پہچان تو انشاءاللہ بآسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. رہی بات سین کی تو اس میں ابھی صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر حروف اصلی سے زائد کی پہچان آپ لوگوں سے ہو سکے تو سین وہ ہوگا جو حروف زائد میں سے ہوگا شروع میں. جیسے اس کی میں آپ کو مثال سے عبارت کرتا ہوں، جیسے سیفتحو. اب یفتحو میں فا تا ہا یہ حروف اصلی ہیں یا حرف علامت مضارع ہے تو سین اس کے شروع میں زائد. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. حروف ناصبہ اور جازمہ. حروف ناصبہ اور جازمہ کل میں نے ایک دفعہ دیکھ لیجئے حروف ناصبہ اور جازمہ کو. جی جی دیکھیے جی یہ دیکھیے حروف جازمہ ان، لم اور لما، اور حروف ناصبہ حرف لن، کی، ان، اذن. ٹھیک ہے. اب اس میں جو زیادہ استعمال ہے وہ حروف جازمہ میں ان اور لم کا ہے اور لما. ٹھیک ہے. یعنی کہ زیادہ تر ان اور لم کا ہے. اور حروف ناصبہ میں حرف ان اور حرف لن ان کا ہے. ٹھیک ہے. ان کی اس لیے مثالیں آگے وہ لکھ دی ہیں. جی اب دیکھیے پہلی بات وہی سمجھ لیجئے کہ دو چیزیں ہیں، کیا ہے اور کیوں ہے. اب ہم نے پہلی چیز کرنی ہے کہ یہ اب ہم کر رہے ہیں فعل کو، اسم یا حرف کی بات نہیں ہے. تو یہ علامتیں وہ ہیں کہ جس لفظ کے شروع میں یہ علامتیں ہوں گی وہ لفظ فعل ہوگا، اسم یا حرف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. حروف ناصبہ میں سے کوئی ایک ہو یا حروف جازمہ میں سے کوئی ایک ہو. ٹھیک ہے. اس کے حل کرنے کی جو آسان ترتیب وہ جیسے میں نے یہ نقشہ آپ دیکھیں کہ ابھی دیکھیں ان یخرج. اب یہاں پہ حرف ان کو استعمال کیا گیا ہے. دیکھیں ان حروف ناصبہ میں سے ہے. اب یخرج فعل ہے، اس کی علامت ہمیں کیا ہے پتہ چل رہی ہے کہ اس کے شروع میں حرف ان ہے. اور ان ناصبہ کا شروع میں ہونا یہ فعل کی علامات میں سے ہے. یعنی ناصبہ عام طور پر یعنی اکثر طور پر فعل پر داخل ہوتا ہے، اسم یا حرف پر نہیں ہوتا. اچھا اسی طرح لم یدخل، یدخل فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں حرف جازمہ میں سے حرف لم ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح لن یضرب میں یضرب فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں حروف ناصبہ میں سے حرف لن ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ جو ہے لام امر لائے نہیں کی یہ مثالیں کی ہیں، ابھی آپ ان کو رہنے دیجئے. نیچے آئیے لما یعلم. ٹھیک ہے. لما یعلم. اب یعلم فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں حرف لما ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ان اریدا، اریدا فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں حرف ان ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح لن تغنیا، تغنیا فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں حرف لن ہے. اب ان میں مختصر یہ مثالیں ایک ایک دو دو مثالیں یہاں پر عرض کر دی ہیں. اب ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک سے ہم نے وہ مثالیں اب ہم آخر سے کریں گے. دیکھیں اس سورہ ناس میں
कोई लफ्ज ऐसा नहीं है कि जिसमें फेल की अलामत पाई जा रही हो। ठीक है, इन अलामत में जो अब हमने हल की। जी, अब आगे सूरह फलक। जी, सूरह इखलास। अब देखिए सूरह इखलास में से तीन तीन अल्फाज ऐसे हैं जिनमें अलामत पाई जा रही है। देखिए लम यलिद। अब देखिए अगर वैसे हम करें तो हमें फेल की अलामत इब्तदाई तौर पर अलामत का पता नहीं चलेगा, इसलिए ये अलामत से अगर हम कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ज़हन में बैठ। देखिए अब हमने करना है, अब मसलन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इसमें लम यलिद क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि यलिद फेल है, लम यलिद नहीं, क्योंकि लम तो हरफ जाज़मा में से है। ठीक है, यलिद फेल है क्योंकि इसके शुरू में हरफ लम है। जी, बात ज़हन में आ रही है जी? यलिद फेल है क्योंकि इसके शुरू में हरफ लम है। अच्छा, इसी तरह दूसरा आगे चलिए, लम यूलद। यूलद फेल है क्योंकि इसके शुरू में हरफ लम है। जी, बात ज़हन में आ रही है ना जी? जी, अब आप खुद इसको, यानी कि मैं इसलिए आराम आराम से करवा रहा हूँ कि ताकि आपके जहन में ये चीज पुख्ता बैठे। इसी तरह लम यकुन। यकुन फेल है क्योंकि उसके शुरू में हरफे लम जाजिमा है। तो यानी इसमें तीन अलामतें हमें मिली कि जो मतलब हरफे लम की तीन मिसालें मिली, लम यलिद, लम यूलद, लम यकुन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सूरह लहब में। अब सूरह लहब में गुज़िश्ता मिसालों में से एक मिसाल थी सयस्ला। ठीक है, वो हमने कल की थी, उसको हम आगे चलते। जी जी, लियाबुदू, इसमें लाम अमर है, लेकिन चूंकि हमने उसकी मिसाल कम पहचान कम होगी इसलिए उसको अभी नहीं कर रहे ज्यादा। बहरहाल ये फेल है क्योंकि उसके शुरू में अलामत जो अमर की वो हरूफ जाजिमा में से लाम अमर है। ठीक है, अब देखें अलम तरा। अब अगर वैसे अगर आप पहचान करना चाहें तो तरा के बारे में आप कभी फैसला नहीं कर सकती कि ये फेल है। ठीक है, क्योंकि दो लफ्ज हैं, इसमें बहुत ज्यादा तालील हुई है। ये वो सर्फ के बाब में शायद आप लोगों ने पहली दफा ही सुने, खिचड़ी के बाब में से। तो इसे इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो सर्फ के बारे में इंशाल्लाह से सवाल करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे तरा फेल है क्योंकि इसके शुरू में हरफे लम है। हमजा जो इस्तिफाम को होता है वो उसके एतबार में उसके शुरू में हरफे लम है। ठीक है, अब देखिए तरा फेल है। जी, जी, बात समझ में आ रही है ना जी? तरा फेल है क्योंकि उसके शुरू में हरफे लम है। ठीक है, इसी तरह लम यजअल। यजअल फेल है क्योंकि इसके शुरू में हरफे लम जाजिमा है। बात समझ में आ रही है जी? जी, जी, अब हम अगली सूरत पे चलते हैं। अच्छा जी, जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, सौफ तालमून, ये हो गया था कल। जी, अच्छा जी, चले एक सूरत और देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। सूरह जिलजाल। जी, अब देखिए, अब हमने अगली अलामत, जो अलामत फेल में से आप देखेंगी कि जिस अलामत को अब हम करेंगे, ये अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जी, अलामत फेल। अलामत फेल में से आप गौर करेंगी कि जी, इसमें ताय साकिन हो।
मिल गई जी अलामत। ये देखिए मैंने इंशाल्लाह ताए साकिन हो। जी अलामत मिल गई है जी। इसकी पहचान करनी है। इसकी पहचान किस तरह है जी, इसको जरा गौर कीजिएगा कि आखिर में लंबी ता साकिन हो। दोबारा अर्ज कर देता हूं कि आखिर में, कलमे के आखिर में लंबी ता साकिन हो तो क्या होगी, फेल की अलामत होगी, यानी वो लफ्ज फेल होगा। ठीक है जी, लंबी ता साकिन, वो लफ्ज फेल होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं कुरान पाक से, मैं आपसे बतलाता हूँ। देखिए इसमें जी, लंबिता, गोलता नहीं, गोलता मैंने आपको पहले अर्ज कर दिया था कि वो इसम की अलामत है। अब देखें फअम्मा मन सकुलत, अब अगर आप लोगों ने तवज्जो से ये बात समझ ली है तो इस लफ्ज को आप फौरन समझ जाएंगे कि फेल है, क्योंकि इसके शुरू में ताए साकिना है लंबी वाली। ठीक है, इसी तरह अम्मा मन खफ्फत, खफ्फत फेल है क्योंकि उसके इसके इसके आखिर में ताए साकिना लंबी वाली है। ठीक है जी, अब आगे और भी मिसालें मैं आपको सूरह असर जी, अच्छा जी, तब्बत, ये आ गया तब्बत। देखें अब तब्बत बज़ाहिर अगर हम और किसी अलामत से तलाश करना चाहें तो हम इसको तलाश नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने ताए साकिना की पहचान ज़हन में रख ली तो अब हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब मैं आपको अगली सूरतों में से एक ऐसी सूरत में लेके चलता हूँ जिसमें तकरीबन आखिर में यही है, और आप सबके जहन में आ गई होगी कि वो सूरत कौन सी है। ताए साकिना लंबी वाली सूरह कुव्विरत। इذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت जी। अब देखिए पहले इसको हल कर लें, सूरह इंशिकाक। अब देखें इذا السماء انشقت जी। अब देखें इन शक्कत फेल है क्योंकि इसके आखिर में ताय साकिन है। अदीनत फेल है, इसके आखिर में ताय साकिन लंबी वाली है। हुक्कत फेल है क्योंकि इसके आखिर में ताय साकिन लंबी वाली है। मुद्दत फेल है क्योंकि इसके आखिर में ताय साकिन लंबी वाली है जी। तखल्लत फेल है, इसके आखिर में ताय साकिन लंबी वाली है। अब ये हो गया जी। अब वो सूरह कुबरत में हम चलते हैं। तो सूरत तकवीर, इसका नाम सूरत तकवीर है। अच्छा अब देखें, अब इसमें तकरीबन 9 कस्में खाई गई। कुव्विरत, इनकदरत, सुजिरत जी, उत्तिलत, हुशिरत, सुजिरत, जुव्विजत, सुइलत, कुतिलत, नुशिरत, उशितत, सुइरत, उजलिफत, अहजरत जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोगों ने ये समझ ली तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि जिस लफ्ज के आखिर में ताए साकिना लंबी वाली होगी वो लफ्ज फेल होगा। ठीक है जी, आज इसको यहीं तक रखिए, तो इसको हल करें जी। जी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।